والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وقت نہایت مختصر ہے مگر آپ نے چند منٹ جو بیٹھنا ہے جاگ کے بیٹھنا ہے. آیت کریمہ تلاوت کی درود پاک کی آیت کریمہ جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ایک میں حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے دباچے میں اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کے پاؤں زمین کے پاتال میں لگتے ہیں اور جس کا سر جو ہے وہ عرش معلیٰ کو لگا ہوا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے اور اس کے اتنے بڑے پر ہیں کہ وہ ایک پر کھولے تو مشرق کی طرف سارا سمیٹ لے اور ایک پر کھولے تو مغرب کی طرف سارا سمیٹ لے. اتنا بڑا فرشتہ ہے جو عرش معلیٰ کے ساتھ جس کا سر لگ رہا ہے. جب کوئی حضور علیہ السلام کا امتی میرے آقا علیہ السلام کا غلام حضور علیہ السلام پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے. وہ اس کے درود پاک کو نور کے تھال میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. مختصر کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ عرض کرتا ہے رب کریم تیرے محبوب کے غلام نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے. رب کریم اس کا اجر کیا دینا ہے. اللہ کریم اس فرشتے کو حکم دیتا ہے. وہ فرشتہ جس کا اتنا بڑا قد ہے کہ پاؤں زمین کے پاتال میں ہے, سر عرش معلیٰ کو لگا ہوا ہے, مشرق و مغرب کو پروں نے گھیرا ہوا ہے, اس فرشتے کو رب کریم حکم دیتا ہے کہ جو میرے عرش کے سائے تلے جو عرش کے نیچے نور کا دریا بہ رہا ہے, اے فرشتے اس میں غوطہ لگا. وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے, غوطہ لگا کے باہر آتا ہے. باہر آ کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے. جب اس کے پروں کو پھڑپھڑایا جاتا ہے اس کے پروں سے نور کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایک نور کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں, ہزاروں فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں رب کریم وہ فرشتے تیری تسبیح کر رہے ہیں, وہ فرشتے تیری تحلیل کر رہے ہیں, وہ رکوع میں ہے, وہ سجدے میں ہے, وہ قیام میں ہے, ہر کوئی تیری عبادت کر رہا ہے. رب کریم ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جس میرے محبوب علیہ السلام کے امتی نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے تم قیامت تک اس کے لیے یہاں کھڑے ہو کر بخشش کی دعائیں کرتے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ. اونچی آواز سے یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں کمال ہے, مجھے عروج مل گیا. کوئی یہ دعویٰ کرے مجھ میں کمال ہے, مجھے عزت مل گئی. کوئی یہ دعویٰ کرے مجھ میں کمال ہے, مجھے مسرت مل گئی. کوئی یہ دعویٰ کرے ہاں میرے کمال کے سبب مجھے اتنی عزتیں ملی. لوگ ہاتھ چومتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں, جوتے اٹھاتے ہیں, ارے اللہ نے عزتیں سب کو عطا کی ہیں. کوئی یہ دعویٰ کرے یہ سب کچھ مجھے میری محنت کا سبب ملا تو نانا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے آقا تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے. سبحان اللہ. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں. ہمارے ماں باپ ہمیں پاس نہ بیٹھنے دے, یہ رب کا کرم ہے. نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کا اثر ہے کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور میں تو کب کا مر گیا ہوتا, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. سبحان اللہ. کب کا مر گیا ہوتا, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اب اس سنبھالنے کی بات بڑی طویل ہے, ایک لمبا مضمون ہے کہ جب میرے آقا کسی کو سنبھالتے ہیں تو کیسا سنبھالتے ہیں. ہاں میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ابو بکر کو سنبھالا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر کو سنبھالا تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان کو سنبھالا تو
सुभान अल्लाह। और मेरे ऐबों पर ढाल कर पर्दा और मुझको अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब का मर गया होता, मुस्तफा ने संभाल रखा। सुभान अल्लाह, सलामत रहे शाह जी। मैंने आपकी बारगाह में कुरान करीम की आयत मुबारक की तिलावत की, आपकी समाअतों की नजर की। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अब आप इसी वकार यहाँ मैं कुल की बात चंद मिनटों में करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ। मैं कुर्बान जो अपने रब की शान पे, मेरे रब करीम ने जब भी किसी अहम बात का ऐलान फरमाया तो अल्लाह करीम ने अपनी जबान से ना फरमाया, अल्लाह करीम ने यह फरमा दिया, रब ने कुल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान किया। अल्लाह ने क्या ना फरमाया हुवल्लाहु अहद, रब ने क्या ना फरमाया मैं एक हूँ। रब करीम ने फरमाया मेरे महबूब अपने लबों को खोलिए, वो ज़बान को खोलिए जिसको रब ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सोनिया अपने लबों को खोलिए और खोल के ऐलान कर दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब ऐलान कर दीजिए कि आपका रब एक है। पता चला रब फरमा रहा है मुझे रब मानोगे, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। जो मुझे रब मोहम्मद मानेगा मैं उसको मानूंगा और उसकी मानूंगा। अरे वो कादर करीम होकर, वो अला कुल्ली शैइन कदीर होकर मखलूक को बराह रास्त अपनी तौहीद का ऐलान नहीं फरमाता। आज बंदे कहते हैं बराह रास्त रब से मांग लो, आज बंदे कहते हैं बराह रास्त रब से मांग लो। रब शायरक के करीब है मगर रब उसके करीब है जो मेरे मुस्तफा के करीब है। जो मेरे मुस्तफा के करीब होगा रब उसके करीब होगा। अल्लाह ने इसी बात को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए, शान नज़ूल मैंने छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए, आप ऐलान फरमाए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हो तो सिर्फ एक काम करो। वो काम क्या है? फत्तबिऊनी, आओ मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो। वो रब करीम जब तेरे महबूब की पैरवी करेंगे, तेरे महबूब की इत्तबा करेंगे, तेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमें इनाम क्या देगा? अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह। पहले तुम कहते हो हम अल्लाह के हैं, फिर अल्लाह ऐलान फरमाएगा अबू बकर भी मेरा है, उमर भी मेरा है, उस्मान भी मेरा है, अली भी मेरा है, अब्दुल कादिर भी मेरा है, या दाता गंज बख्श फैज़े आलम भी मेरा है। अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम मेरे महबूब से वफा करो, मेरे महबूब के हो जाओ। अब आप जी वकार चंद मिनट के लिए दावत फिक्र है हमने अपने महबूब से वफा कितनी की, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा कितनी की। मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बी हबली उम्मती कहा। मेरे महबूब इस दुनिया से ज़ाहिर पर्दा फरमाए तो फरमाया रब्बी हबली उम्मती। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन उदरा के मुकाम पर रब से मुलाकात फरमाई। मेरे रब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया राईत रब्बी बिअहसनि सूरा, मैंने रब को हसीन सूरत में देखा। अरे जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से मुलाकात फरमाई, बताएं क्या बातें की। कोई अपनी बात की, अपनी औलाद की बात की, कोई अपनी बात की। नाना उस वक्त भी यही कहा रब करीम मुझे शफाअत का हक दे दे, मैं जिस जिसको कहता जाऊंगा तू बख्शिश अता फरमा देगा। अरे वो महबूब जो हमें ना आते हुए भूला, ना जाते हुए भूला, ना रब से मुलाकात के बगैर भूला। आज हम कैसे मुसलमान हैं कि हम उन्हें भूल गए। हम अपने गिरबान में झांक के देखें हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या वफा की है। मेरे दोस्तों आओ, हुजूर से वफा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी अपने वालिदैन का एहतराम है। अपने वालिदैन का एहतराम है। अपने बूढ़े वालिदैन का एहतराम करें, अपनी माँ का एहतराम, अपने बाप का एहतराम। वो जालिम भी हो तो उनके आगे सर तस्लीम खम करना है। वो बुरा भी कहे तो उनके साथ ऊंची आवाज में बात, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, बुलंद आवाज में बात नहीं करनी। आज बताए अपने वालिदैन का क्या एहतराम करते हैं? जो अपने वालिदैन का एहतराम नहीं कर सकता वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम क्या करेगा? जो अपनी अम्मा जी और अब्बा जी का एहतराम नहीं कर सकता। मामलात होते हैं, आजमाइश आती है, मगर अपने वालिदैन के सामने उफ तक का कलमा कहने की इजाजत नहीं है। वाबजी वकार और फिर हज का सवाब है मकबूल, वालिदैन का दीदार करना। अगर इन बातों को तफसील में बयान किया तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। हमने अपने वालिदैन का अदब करना है, हमने अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करना है। अपने बच्चों
माँ का एहतराम करूंगा तो मेरा बच्चा मेरा एहतराम करेगा। अगर मेरा एहतराम, मैं अपने बाप वालिदैन का एहतराम नहीं करूंगा, मैं कैसे उम्मीद रखूंगा मेरी औलाद मेरा एहतराम करेगी? ये हो ही नहीं सकता। वाहिद ये एक ऐसा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी, जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। तो अपने वालिदैन का एहतराम करें। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मैं अपने गिरबान में झांकता हूँ, आप अपने गिरबान में झांके। हमने आज तक इस हाथ से किस किस को नुकसान पहुंचाया, इस ज़बान से किस किस को नुकसान पहुंचाया? कल क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दे तो मैं क्या करूंगा? जिसका दिल दुखा है उससे माफी मांगनी चाहिए। ये दुनिया नहायत मुख्तसर है। आप देखिए हमारे नवीद भाई जुमरा क्लास ट्रैवल वाले हमारे साथ बैठते उठते खाते पीते, एक मोहब्बत भरी शख्सियत, किस तरह सारे के सारे इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये फ़ानी दुनिया है, पता नहीं मैंने उठ के यहाँ से घर जाना भी है कि नहीं जाना। अब आप इसी वक्त जब ये मामला है तो फिर किस बात की अकड़ है, किस बात की अकड़ है? मौला अली करमुल्लाह वजह का एक मैंने फरमान पढ़ा, अगर इंसान ये जान ले कि उसकी इब्तिदा कैसे है और उसकी इंतहा क्या है और उसके पेट में हर वक्त क्या भरा रहता है, तो वो तकब्बुर करना छोड़ दे। हमने अपनी इब्तिदा पे गौर नहीं किया, हमने अपनी इंतहा पे गौर नहीं किया। आज से 50 साल पहले मेरा नामो निशान नहीं था, आज से 50 साल बाद मेरा नामो निशान नहीं होगा। फिर गुरूर किस बात का, फिर तकब्बुर किस बात का? हाँ, नामो निशान रहता है। 1000 साल हो गए मेरे दाता तो दुनिया से गए, आज भी किससे पूछ लें, बच्चा बच्चा कहता है गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। अरे आज यजीद का नाम कोई नहीं जानता, फिरौन का नाम, अबू जहल का नाम कोई नहीं जानता। बच्चे बच्चे से पूछ लो मुअज़्ज़िन रसूल का नाम क्या है, बच्चा बच्चा कहेगा सय्यदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। बात क्या है? ये हुजूर से वफा की बात है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा, इकबाल ने इसीलिए नाम फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जो चाहता है मैं जमीन के साथ आसमानों की बादशाही करने लग जाऊं, उसके लिए सिर्फ एक मौका है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है। मैं इसी पर अपनी बात को